Mohit, yes, absolutely. The rioters are being identified, being nabbed, action is being taken, but then there are riot apologists who are backing them. First the Samajwadi Party and now the PFI is defending them. The PFI says only one particular community is being targeted by the UP police. So this is not happening for the first time, rather, because the PFI has come and has backed, in a way, justified the violence, also saying that when protests happen in areas which are Muslim dominated, they are treated as acts of terrorism. This is the kind of backing that they are giving, because we've already heard it. A similar kind of justification that came in from the Samajwadi Party Neta Abu Azmi, saying कि ऐसे हादसे होते रहते हैं. And Mohit, this is now the PFI. There is also an alleged involvement there that is being investigated by the police. Well, yes, the involvement of the PFI or any other organization might come under the scanner of the police and after the investigation. But now PFI, before that, coming out, giving out statement, and I would like to read a part from it, because Amita, you also stated that ऐसे घटनाएं होती रहती है. कई लोगों ने कहा है that PFI in the statement says the protest turning violent is nothing new in India. It needs to be approached legally and objectively. However, when protests happen on Muslim-related issues, they are treated as acts of terrorism. So in a way, clearly the PFI has come out and they have justified. They have said that earlier also these kind of incidents have happened. So what PFI wants now, that the UP police should not take any action, UP police should not arrest the culprits. Now a call was given for a protest. Protests in a democratic country, protests are clearly allowed. But show that letter on the big screen. Let's go across to Kritsveen for that. Kritsveen, show our viewers how the PFI is defending the rioters, and it is, you know, back at the government, the administration, alleging that one particular community is being targeted. You know, we'll put out that letter in just a bit. Yes, here it is for viewers to see, and my camera person can perhaps zoom in as well. So this is the letter. Popular Front of India General Secretary Anees Ahmad has stated that... गिरीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम. सर, अगर कानपुर की घटनाओं के बारे में आपको कुछ कहना है सर, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक एक करके जितने वो लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे सर, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बुलडोजर चलेगा नेक्स्ट. नहीं, देखिए, ये सरकार की नीति स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब दंगाइयों के लिए नहीं, अब दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को चुनौती देने वाला कोई भी शख्स वो कानून के दायरे में लाया जाएगा, और जो भी कानून प्रदत्त कार्रवाई होगी. आपने देखा होगा सीए का जब प्रदर्शन हुआ था, तो जो भी जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था उनकी वसूली की गई थी, उनके फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशित किए गए थे. अभी ये भी पत्थरबाज जो भी हों, इनमें किसी जाति या किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है. दंगाई जो भी हैं, जिनके फुटेज में मिले हैं, उनकी फोटो भी सरकार ने, जो जिला प्रशासन है, और उसने वहां पर उसको डिस्प्ले किया है, और उनके खिलाफ भी जैसा अन्य अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. जहां तक अवैध समाजवादी पार्टी और अब जो पीएफआई जैसे संगठन हैं, उनका ये कहना है कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं. नहीं, देखिए, अभी कई जगह तो हिंदू संस्थानों के उसमें भी हुआ. आपने देखा होगा कि तमाम हिंदू मंदिरों में भी स्पीकर उतारे गए. अगर मस्जिद से उतरे तो हिंदू मंदिरों में भी उतरे. और दिनेश शर्मा जी, आप गुजारिश करूंगी आप हमारे साथ बने रहिए. इस वक्त हमारे साथ सत्यदेव पचौरी जी भी जुड़ रहे हैं, एमपी हैं कानपुर से. बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ पर. लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि वीडियोस देखकर एनालाइज की यूपी पुलिस ने, पोस्टर्स रिलीज किए. अब आरोप ऐसा लग रहा है कि आप लोग केवल एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं. खबर ये भी आ रही है कि अगला बुलडोजर चलाएंगे उनके घरों पर. नहीं, हम टारगेट उनको कर रहे हैं जो शांति व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जो उग्रवाद की घटना कर रहे हैं, मजहब के आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, और शांति व्यवस्था को जो खतरा बनना चाहते हैं, हम उनको खतरा बन रहे हैं. हमारा कार्रवाई है कि हम ऐसी मानसिकता को बिल्कुल समाप्त कर देंगे जो समाज में विग्रह की स्थिति उत्पन्न करे, लोगों को भड़काए और कानून व्यवस्था को चैलेंज करे. इस तरह के संगठन सामने आते हैं पचौरी जी, के एक तरह से बोलते हैं कि आप एक समुदाय को ही टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे लगे, चाहे कहीं पर भी हिंसाएं घटनाएं हो. एक समुदाय के लोग अगर बवाल में सम्मिलित होंगे, पीएफआई के लोग, पॉपुलर
जो एक समुदाय के लोगों को भड़काएंगे, राष्ट्र विरोधी उनको भाषण देंगे, तिरंगे का अपमान करेंगे, राष्ट्र गीत नहीं गाएंगे, तो उनको सोचना पड़ेगा ना। उनकी मानसिकता 70 सालों में खराब हो गई है। राष्ट्र विरोधी मानसिकता में वो न जाए। अगर भारत में रहना है तो हमें इस मातृभूमि से प्रेम करना पड़ेगा, भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। जी हम उनकी देखिए मजहबी स्वतंत्रता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अराजकता फैलाएं। अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं सत्यदेव पचौरी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राइट हियर ऑन टाइम्स नाउ।